Today we're going to look a little more at that humility of Jesus Christ, which is an example for us to follow. हम एक बार फिर यीशु मसीह की विनम्रता पर थोड़ा और गौर करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए अनुसरण करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है. It's important for us to follow this example because God says He gives His grace only to the humble. हमारे लिए उस उदाहरण का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वो अपना अनुग्रह केवल विनम्र लोगों को ही देते हैं. Disciples, on the night before He was crucified, when He washed their feet, He said, "You call me Lord and Master," John chapter 13, "and I have washed your feet. You must do the same for one another." What does that mean? यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले उनके अपने शिष्यों के पैर धोने के तुरंत बाद उन्होंने कहा, तुम मुझे प्रभु और स्वामी कहते हो और फिर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं. तुम्हें भी एक दूसरे के लिए ऐसा ही करना चाहिए. इसका क्या अर्थ है? Many people have felt that it means that we must all take basins of water and wash one another's कई feet. लोगों ने महसूस किया है कि इसका मतलब है कि हम सभी को पानी के बर्तन लेने चाहिए और एक दूसरे के पैर धोने चाहिए. Even if our feet are covered with socks and shoes are not भले ही dirty, हमारे पैर मोजे और जूतों से ढके हो और गंदे न हो, that becomes a meaningless वह ritual. एक अर्थहीन अनुष्ठान बन जाता है. What exactly did Jesus do that day when He took that basin of यीशु ने water? उस दिन वास्तव में क्या किया जब उसने पानी का वो बर्तन लिया? If all those disciples were wearing socks and shoes like we wear today, particularly in colder climates, then there would be absolutely no need to wash their feet at यदि all. वे सभी शिष्य मोजे और जूते पहने होते जैसे हम आज पहनते हैं, विशेष कर ठंड के मौसम में, तो उनके पैर धोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती. Why did He wash their feet? उसने उनके पैर क्यों धोए? It was not a religious ritual He went यह through. कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था जिसे वह गुजरे. It was an act of necessity where He saw a need for a dirty job to be done for His disciples. And He did it. नहीं, ये एक आवश्यक कार्य था. उन्होंने अपने शिष्यों के लिए एक गंदा काम करने की आवश्यकता देखी और उन्होंने ऐसा किया. So when He said that I have given you an example, I, the Lord and teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet because I gave you an example, John 13:15, that you should also do as I did to you. जब उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है, मैं प्रभु और शिक्षक ने तुम सबके पांव धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए. मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया कि तुम्हें भी वैसा ही करना है जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया. यूहन्ना 13:15. We ask ourselves, what is it that Jesus did to the हमें apostles? स्वयं से पूछना चाहिए, ऐसा क्या है जो यीशु ने प्रेरितों के साथ किया? In one sentence, we could say He met their physical need by doing a dirty task for them. एक वाक्य में हम कह सकते हैं, उसने उनके लिए गंदा काम करके उनकी शारीरिक जरूरत को पूरा किया. So what has He told us to do? तो उसने हमसे क्या करने को कहा है? He has told us to be willing to do dirty tasks for one another. उन्होंने हमसे कहा, तुम्हें भी एक दूसरे के लिए गंदे काम करने के लिए तैयार रहना है. Where there is such a necessity, not to go through a जहाँ ritual. जरूरत हो, न कोई रस्म अदायगी करे. If you are in a meeting hall, for example, the way you wash people's feet would probably be by going and cleaning the toilet so that it's kept clean. उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सभा घर में हैं, तो जिस तरह से आप लोगों के पैर धोते हैं, वह संभवतः अंदर जाकर शौचालय की सफाई करने जैसा होगा ताकि वह साफ रहे. That would be the equivalent of washing the feet today. वह आज पैर धोने के बराबर होगा. It's a question of seeing a particular need and then meeting it. यह किसी विशेष आवश्यकता को देखने और फिर उसे पूरा करने का प्रश्न है. And what Jesus did there in taking that basin of water and washing their feet was typical of His whole life. यीशु ने वहां पानी का वह बर्तन लेकर और उनके पैर धोकर जो किया, वह उनके पूरे जीवन की विशेषता थी. All His life, I believe He was a servant of all men. We are not told how He lived for 30 years in Nazareth, but I can imagine how He lived. मेरा मानना है कि अपने पूरे जीवन में वह सभी मनुष्य के सेवक थे. हमें यह नहीं बताया गया है कि वह नाजरेत में 30 वर्षों तक कैसे रहे, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि वह कैसे रहते होंगे. He must have lived serving others, serving His younger brothers, younger sisters, serving Mary, serving others in the neighborhood, being willing to do any task for anyone. वह दूसरों की सेवा करके जीता होगा. अपने छोटे भाइयों की, छोटे बहनों की सेवा करना, मरियम की सेवा करना, पड़ोस में दूसरों की सेवा करना, किसी के लिए भी कोई भी कार्य करने को तैयार रहना. Seeing a need and being quick
to meet it. किसी की आवश्यकता को देखना और उसे पूरा करने के लिए तत्पर होना. There we see his humility. And there we see how God wants man to live. वहाँ हम उनकी विनम्रता देखते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य कैसे जिए. My dear friend, that's how God wants you to live. मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर चाहता है कि आप इसी प्रकार जिए. And if you can see this and be gripped by the glory of Jesus, your life can be transformed. Don't worry if other Christians around you are not living like this. यदि आप इसे देख सकते हैं और यीशु की महिमा से प्रभावित हो सकते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है. यदि आपके आसपास अन्य मसीही इस तरह नहीं जी रहे हैं तो चिंता न करें. Don't judge them. Don't find fault with them. That's not our business. उनका न्याय न करें, उनमें दोष न ढूंढे, यह हमारा काम नहीं है. God is the judge of all men and we don't have to judge anyone. But you can be like this, can't you? परमेश्वर सभी मनुष्यों का न्यायाधीश है और हमें किसी का भी न्याय नहीं करना है, लेकिन आप ऐसे हो सकते हैं, है ना? How happy you will be. Jesus said that in John 13:17 after speaking about being willing to wash one another's feet and actually doing it. He said, if you know these things, you'll be really happy if you do it, not if you just think about it. आप कितने खुश होंगे. यीशु ने एक दूसरे के पैर धोने के लिए तैयार होने और वास्तव में ऐसा करने के बारे में बात करने के बाद कहा, यदि तुम ये बातें जानते हो और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम सचमुच प्रसन्न हो जाओगे. यूहन्ना 13:17. यह नहीं कि केवल आप सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं. The way of life that Jesus demonstrated is a way of supreme happiness. यीशु ने जीवन का जो मार्ग दिखाया वो सर्वोच्च सुख का मार्ग है. You're not happy when you sit like a big Maharaja, a lord, on your chair, make other people serve you. जब आप किसी बड़े महाराजा या स्वामी की तरह अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और दूसरों से अपनी सेवा कराते हैं तो आप खुश नहीं होते हैं. If you really want to be happy, be a servant. यदि तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो आप सेवक बनो. Jesus associated very closely with the lowest level of society in his time. यीशु अपने समय में समाज के सबसे निचले स्तर से बहुत निकटता से जुड़े थे. He moved among them as their equal. वह उनके बीच उनके बराबर बनकर घूमते थे. Have you seen fishermen on the coasts of India? क्या आपने भारत के तटों पर मछुआरों को देखा है? You go down to a number of places along the coast and you can see fishermen. At what level of society do they live? आप तट के किनारे कई स्थानों पर जाएं और आप मछुआरे देख सकते हैं. वे किस स्तर के समाज में रहते हैं? They are despised as belonging to the lowest level of society. Particularly, I don't mean these rich fishermen who go out in trawlers and motorboats. उन्हें समाज के सबसे निचले स्तर का कहकर तिरस्कृत किया जाता है. मेरा मतलब उन अमीर मछुआरों से नहीं है जो ट्रॉलर और मोटर बोट में बाहर जाते हैं. No, I'm talking about people who put their nets into the sea and catch fish. नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो समुद्र में जाल डालकर मछलियां पकड़ते हैं. And Peter and James and John were like that. पतरस, याकूब और यूहन्ना ऐसे ही थे. If you want to see what they were like, go and look at these fishermen who cast their nets into the sea, who go out in their little boats. And Jesus associated with them. यदि आप देखना चाहते हैं कि वे कैसे थे तो जाएं और इन मछुआरों को देखें जो समुद्र में अपना जाल डालते हैं, जो अपनी छोटी नाव में निकलते हैं. यीशु उनके साथ जुड़े. And not only with people in a low level of society, socially, but also those who were at a very low level morally. न केवल सामाजिक रूप से समाज के निचले स्तर के लोगों के साथ, बल्कि उन लोगों के साथ भी जो नैतिक रूप से निचले स्तर पर थे. Prostitutes, drunkards, cheats. He was sinless and perfect, and he mingled with them, and he was not afraid of people calling him bad names, saying he's a friend of sinners. वेश्याएं, शराबी, धोखेबाज. वो पाप रहित और सिद्ध था, फिर भी वो उनके साथ घुल मिल गया. वह लोगों का उसे बुरा भला कहने से नहीं डरता था और कि वह उसे पापियों का मित्र कहे. And he never made a single sinner feel awkward through his perfect holiness. उन्होंने अपनी पूर्ण पवित्रता के माध्यम से एक भी पापी को कभी भी भद्दा महसूस नहीं कराया. You know, one mark of a humble man is that he never makes you feel awkward. आप जानते हैं कि एक विनम्र व्यक्ति की एक पहचान यह है कि वो आपको कभी भी भद्दा महसूस नहीं कराता है. He always makes you feel comfortable around his presence, even if he's holy. भले ही वो पवित्र हो, वो हमेशा आपको अपनी उपस्थिति के आसपास सहज महसूस कराता है. Jesus was like that. The Pharisees were not like that. यीशु ऐसे ही थे, फरीसी ऐसे नहीं थे. You know, they were so stiff. They wouldn't let anybody come near them because they considered themselves so holy. आप जानते हैं कि वे कितने कठोर थे. वे किसी को भी अपने पास नहीं आने देते थे क्योंकि वे स्वयं को बहुत पवित्र मानते थे. But Jesus wasn't like that. लेकिन यीशु ऐसे नहीं थे. He mingled with the lowest level of people.
and made them feel at home. And in fact, he moved around with his disciples so freely that Peter would sometimes rebuke him and felt free to give him advice. वो सबसे निचले स्तर के लोगों के साथ घुल मिल गए और उन्हें घर जैसा महसूस कराया। वास्तव में वह अपने शिष्यों के साथ इतनी आजादी से घूमता था कि पतरस कभी कभी उसे डांटता था और स्वतंत्र महसूस करते हुए उसे सलाह भी देता था। Can you think of that? The disciples would feel free to give him some advice. Lord, we think you should do this or that. क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? शिष्य बेझिझक कुछ सलाह देते, हे प्रभु हम सोचते हैं कि आपको यह करना चाहिए या वह नहीं करना चाहिए। Now, how is it today with a lot of Christian leaders? You find them mingling like this? अब आज बहुत सारे मसीह अगुवाओं के साथ स्थिति कैसी है? क्या आप उन्हें इस तरह घुलते मिलते पाते हैं? No. Christianity has not given to our country a demonstration of how Jesus lived on earth. नहीं, मसीही धर्म ने हमारे देश को यह प्रदर्शित नहीं किया है कि यीशु पृथ्वी पर कैसे रहते थे। We have failed. We need to acknowledge it. Never mind others. हम असफल हो गए हैं, हमें इसे स्वीकार करना होगा। दूसरों की परवाह मत करो। You who are listening to this program, you can demonstrate the life of Christ in your own life, in your locality. आप जो इस अध्ययन को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में अपने इलाके में यीशु मसीह के जीवन का प्रदर्शन कर सकते हैं। And if little by little each of us do that, our country will once again be able to see true Christianity demonstrated with people living like Jesus. यदि धीरे धीरे हम में से हर कोई ऐसा करता है तो हमारा देश एक बार फिर यीशु की तरह रहने वाले लोगों द्वारा प्रदर्शित सच्ची मसीहत को देखने में सक्षम होगा। See the humility of Jesus in the spiritual realm. आध्यात्मिक क्षेत्र में यीशु की विनम्रता देखें। In the Garden of Gethsemane, he was under tremendous pressure. The Bible says in Matthew 26 and verse 38 that Jesus was deeply grieved to the point of death. गतसमने बगीचे में अत्यधिक दबाव में वह अत्यधिक दबाव में था। बाइबल मत्ती 26:38 में कहती है कि यीशु इस हद तक बहुत उदास थे कि उन्होंने कहा कि मेरा प्राण निकला जाता है। And what does he do at such a time? He doesn't act as though he's self-sufficient. He doesn't need anybody's help. He calls Peter, James and John and says, "Pray with me." ऐसे समय में वह क्या करता है? वह ऐसे कार्य नहीं करता जैसे कि वह आत्मनिर्भर है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नहीं, वह पतरस, याकूब, यूहन्ना को बुलाता है और उनसे कहता है, साथ प्रार्थना करने के लिए कहता है। Think of asking somebody to pray with you. A proud man will never ask anybody to pray with him. He says, "I don't need your prayer. I'm okay." किसी को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए कहने के बारे में सोचे। एक अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं कहेगा। उसे ऐसे कोई जरूरत महसूस नहीं होती और कहता है कि मैं ठीक हूं। But Jesus, the Son of God, who lived such a perfect life, asking these simple, stupid, foolish disciples who had so many weaknesses, saying, "Will you please come and pray with me because I'm under tremendous pressure." लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु, जिन्होंने इतना आदर्श जीवन जिया, ने इन सरल शिष्यों से, जिनमें बहुत सारी कमजोरियां थी, वे मूर्ख थे, पूछते हुए कहा, क्या आप कृपया आकर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे क्योंकि मैं बहुत दबाव में हूं। Jesus was conscious of his weakness as a human being. And he sought the fellowship of his disciples in prayer. यीशु एक इंसान के रूप में अपनी कमजोरी के प्रति सचेत थे और उन्होंने प्रार्थना में अपने शिष्यों की संगति मांगी। Do you do that? Or are you so self-sufficient? Do you see, my dear friend, how far we are from the humility of Jesus Christ? क्या तुम वो करते हो? या क्या आप इतने आत्मनिर्भर हैं? क्या तुम देखते हो मेरे प्रिय मित्र, हम यीशु मसीह की विनम्रता से कितनी दूर हैं? It's because we're not honest to acknowledge that we're nothing, that God's power cannot be manifested through our lives. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यह स्वीकार करने में ईमानदार नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन के माध्यम से प्रकट नहीं हो सकती। You know why God's power was manifested in such a fantastic way in the life of Jesus? क्या आप जानते हैं कि यीशु के जीवन में परमेश्वर की शक्ति इतने शानदार तरीके से क्यों प्रकट हुई? Because he recognized he's nothing. He just lived before his Father as nothing, and the Father could manifest all his power through Christ. क्योंकि उसने पहचान लिया कि वह कुछ भी नहीं है, वह अपने पिता के सामने कुछ भी नहीं के रूप में रहता था और पिता मसीह के माध्यम से अपनी सारी शक्ति प्रकट कर सका। There are only two spirits operating in the world, one going up, the other going down. संसार में केवल दो आत्माएं कार्यरत है, एक ऊपर जा रही है, दूसरी नीचे जा रही है। Up in the sense of
exalting oneself in pride, down in the sense of humbling oneself. The spirit of Lucifer and the spirit of Christ. ऊपर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने के अर्थ में और नीचे स्वयं को नम्र करने के अर्थ में लूसीफर की आत्मा और मसीह की आत्मा. And it's operating everywhere. It's operating in Christendom too. You find even in Christian organizations, Christian churches, Christians trying to push other people down, get on top of their shoulders, climb up to higher positions. यह हर जगह चल रहा है. यह मसीह जगत में भी चल रहा है. आप इसे मसीह संगठनों में, मसीह कलीसियाओं में भी पाते हैं. मसीही अन्य लोगों को नीचे ढकेलने, उनके कंधे के ऊपर चढ़ने, ऊंचे ऊंचे पदों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. And what spirit is that? Is that the spirit of Christ? No, it's the spirit of Lucifer. It's the spirit of Satan operating in churches, Christian organizations. Isn't that sad? तो कौन सी आत्मा है? क्या वो मसीह की आत्मा है? नहीं, यह लूसीफर की आत्मा है. यह शैतान की आत्मा है जो कलीसियाओं और मसीह संगठनों में काम कर रही है. क्या यह दुखद नहीं है? Jesus Christ came with another spirit of humbling himself, going down. And I want to say to you, this is the way we can identify a true disciple of Jesus. He has absolutely no desire to go up or to become great or big, either in the Christian church or in the world. यीशु मसीह स्वयं को दीन बनाने, नीचे जाने की एक और आत्मा के साथ आए. मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही वो तरीका है जिससे हम यीशु के सच्चे शिष्य की पहचान कर सकते हैं. उसे मसीह कलीसियाओं या दुनिया में ऊपर जाने या महान या बड़ा बनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है. He just wants to go down. He wants to bless others. He doesn't want to exalt himself over a single person anywhere. वो बस नीचे जाना चाहता है. वो दूसरों को आशीर्वाद देना चाहता है. वो कहीं भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर बढ़ना नहीं चाहता है. Finally, we see in the death of Jesus his humility coming to a perfect. अंततः यीशु की मृत्यु में हम उसकी विनम्रता को पूर्ण अंत तक आते हुए देखते हैं. End to perfection. Because in the death and the trial of Jesus, सिद्धता के लिए, क्योंकि यीशु की मृत्यु और परीक्षण में he was never given justice. He was humiliated, ridiculed, mocked, ill-treated, and made like the scum of the earth. उसे कभी न्याय नहीं दिया गया. उसे अपमानित किया गया, उपहास किया गया, मजाक उड़ाया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे धरती के मैल के समान बना दिया गया. And there you see his humility, that he never called the angels to help वहां him. आप उनकी विनम्रता देखते हैं कि उन्होंने कभी मदद के लिए स्वर्गदूतों को नहीं बुलाया. He could call 72,000 angels with one word. Why didn't he do it? No, he humbled himself. वह एक शब्द में स्वर्गदूतों की 72,000 सेनाओं को बुला सकता था. उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने स्वयं को दीन बना लिया. He didn't grab. All through his life, he opened his palms to give to others. And he finally opened his palms to receive the nails on the cross. उसने कभी नहीं छीना. अपने पूरे जीवन में उन्होंने दूसरों को देने के लिए अपनी हथेलियां खोली और अंततः उसने क्रूस पर कीलों को प्राप्त करने के लिए अपनी हथेलियां खोली. This is the way that Jesus went. And this is the way that God wants you and me to live. यीशु इसी रास्ते पर चले और इसी रास्ते पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं चले. With an open palm, not with a clenched fist to fight with others. खुली हथेलियों से, बंद मुट्ठी से दूसरों से लड़ने के लिए नहीं. No, but with an open palm to give up our rights, not judging others. नहीं, लेकिन खुली हथेली के साथ अपने अधिकार छोड़ने के लिए, दूसरों का न्याय न करने के लिए. Leaving it to God to judge. Jesus once said in John 8 verse 15, I don't judge anybody. न्याय करना परमेश्वर पर छोड़ देना. यीशु ने एक बार यूहन्ना 8:15 में कहा था, मैं किसी का न्याय नहीं करता. He submitted to the humiliating death that his father planned for him. उसने उस अपमानजनक मृत्यु को स्वीकार कर लिया जो उसके पिता ने उसके लिए योजना बनाई थी. And it didn't matter how he was killed. He accepted it. He was obedient unto death. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कैसे मारा गया. उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया. वह मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी था. My dear friend, this is the real Jesus of the scriptures. मेरे प्रिय मित्र, यह पवित्र शास्त्र का असली यीशु है. He was not honored as a celebrity or a film star, like many of today's evangelists. उन्हें एक सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार के रूप में सम्मानित नहीं किया गया, जैसा कि आज कई प्रचारकों को किया जाता है. On the other hand, people rejected him, despised him, and nailed him to a cross. दूसरी ओर लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया, उसका तिरस्कार किया और उसे सूली पर चढ़ा दिया. This is true Christianity.
It's not a popular big यह thing. सच्ची मसीहत है, यह कोई लोकप्रिय बड़ी बात नहीं है। The Bible says that which is highly esteemed among men is an abomination before God. बाइबल कहती है कि जो बातें मनुष्य के बीच अत्यधिक आदरणीय है वो परमेश्वर के सामने घृणित है। Let's look at Jesus and go down the way he went. आइए हम यीशु को देखें और जिस रास्ते पर वह गए उसी रास्ते पर चले।